Yes, students, this is our lecture which is based on the mechanism of concentration of filtrate. We know that in case of the NCERT, especially in case of the counter current mechanism which is responsible for the concentration of nephric filtrate, the first line is mammal have ability to produce concentrated urine. Is the very first line is the key line to understand the topic, that mammals have ability to produce concentrated urine, and there are two structures, Henle loop of the nephron and vasa recta, means that the parallel peritubular capillaries which is parallel to the Henle loop is called vasa recta. These two play a significant role. To maintain the mechanism of concentration of filtrate. And a very last line of the NCERT itself, a very good question for the NEET. The human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate rate. जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, उस इनिशियल फिल्ट्रेट से ह्यूमन किडनी जो है वो प्रोड्यूस करती है नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट. जो इनिशियल फिल्ट्रेट हम यूज़ करते हैं यहाँ से बोमेन कैप्सूल से, और लास्ट में जहाँ पर यूरिन बनती है आकर पूरा कंप्लीट करके, वो यूरिन 4 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीट, अ वेरी लास्ट लाइन ऑफ द NCERT इन दिस टॉपिक, काउंटर करेंट मैकेनिज्म. क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता है. उसके लिए आप सबसे पहले आज अपने इस डायग्राम में इस बोर्ड को समझिए, फिर आगे समझना शुरू करिएगा. आप देखिए, मैंने यहाँ पर मैल्फिगन कॉर्पसेल्स बनाया. एफरेंट आर्टरियोल्स मीन्स दैट डर्टी ब्लड कम्स afferent arteriole. This is the efferent arterioles which form the peritubular capillaries, network of peritubular capillaries around the tubule of the nephron. Now this is the Bowman capsule, this is the PCT region and DCT region, and we all know that the Malpighian corpuscles, or you can say renal corpuscles, PCT and DCT, all three present in the cortex region. So in this diagram, in this lecture, the region above this stick is the cortex region, of the nephron. Now this region is called outer medulla and this region is called inner medulla. Clear? Now medulla is divided into outer medulla and inner medulla. Above the outer medulla is the cortex part, where the Malpighian corpuscles, PCT and DCT present. Clear? Now, in between this area of the kidney, this area of the kidney, and this area of the kidney is called medullary interstitial space. Listen to me carefully. सबसे पहले ध्यान से सुनिए. मैंने कहा कि इस डायग्राम में कॉर्टेक्स रीजन ऊपर वाला है, नीचे मेडुला 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर मेडुला, इनर मेडुला. क्लियर? यहाँ पर 2 आर्म हैं, ये वासा रेक्टा की. नीचे आ रहा है ब्लड, मीन्स दैट डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा. ऊपर जा रहा है ब्लड, मीन्स दैट ascending arm of vasa recta. Same here in case of the nephron, the filtrate comes down descending limbs and descending limbs of the Henle loop, and the filtrate ascent towards the DCT is the ascending limbs of Henle loop. And we know that the Henle loop
and vasa recta, the important question for the NEET, Henle loop and vasa recta play a significant role in the mechanism of concentration of filtrate. क्लियर बात हो गई. नाउ अब चलते हैं आगे एक कॉन्सेप्ट पे. यहाँ पे मैंने लिखा ऑस्मोलैरिटी. नाउ द वन क्वेश्चन, what is the unit of osmolarity? Means that the unit for measurement of osmolarity is the milliosmol per liter. This is the first NEET question. आपके लिए पहला नीट का क्वेश्चन मैंने ये बोला, उसने यही आपसे पूछ लिया कि ये पूरा ऑस्मोलैरिटी पर डिपेंड है टॉपिक. उसने कहा था व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी. आपको आंसर देना होगा कि द ऑस्मोलैरिटी यूनिट इज़ MOL पर लीटर, मीन्स दैट मिली ऑस्मोल पर लीटर. क्लियर. फर्स्ट चीज़. सेकेंड चीज़, ऑस्मोलैरिटी क्या है? Osmolarity is the ratio of salt to the water. Means to the water in means osmolarity is directly proportional to the concentration of the salt. जितना ज़्यादा salt होगा उतनी osmolarity होगी. And the osmolarity is inversely proportional to the water. अगर water ज़्यादा होता जाएगा तो osmolarity कम होती जाएगी, अगर water कम होगा तो osmolarity ज़्यादा होगी. इस फार्मूले से आप लोग समझ सकते हैं. मैंने एरो भी लगाया हुआ है कि अगर साल्ट ज़्यादा हैं, अगर साल्ट आर मोर मीन्स ऑस्मोलैरिटी मोर, मीन्स दैट वाटर इज लेस इन अमाउंट. क्लियर हुआ. ठीक है. अब डायग्राम में फिर समझते हैं. ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये लूप ऑफ हैनेल हो गया, हैनेल लूप. ये आपकी इफ्रेंट आर्ट्रियोल है जो आई आगे और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डेवलप हो गई, और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज थी जो रन कर रही थी पैरेलल टू द हैनेल लूप is called vasa recta, is called vasa recta. So here is the descending limb of vasa recta and ascending limbs of vasa recta in the diagram, and this is the descending limbs of loop, Henle loop, and this is the ascending limbs of Henle loop in the diagram. Clear हुआ. And in between these two, ये देखिए बीच का स्पेस, बीच का स्पेस, ये बीच का स्पेस, ये स्पेस, ये किडनी में इंटरस्टिशियल स्पेस है, और जिसको मैंने इसको येलो कलर से हल्का सा शेडेड किया, तो आप ये समझ लीजिए इट इज़ फिल्ड विद द इंटरस्टिशियल, और ये कैसे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. क्लियर हुआ. अब चलते हैं टॉपिक में आगे. आपने देख लिया ना मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने कहाँ कहाँ पे बताया डायग्राम में. पहले बच्चों उसको खूब ध्यान से समझो, तभी टॉपिक को क्लियर कर पाओगे. क्लियर हुआ. ये देख लीजिए चारों तरफ मेडुला पार्ट में आप देख रहे हो तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसको बोल दिया गया. बीच में रख दीजिए नेफ्रॉन और बीच में रख दीजिए पार्ट किसका, वासा रिक्टा का और हैनेल लूप का. ये दोनों लिम्ब हो गए. क्लियर. बात क्या होती है, इट इज़ मेंटेन बाय द काउंटर करंट मैकेनिज्म. अब सवाल आता है बच्चों ये काउंटर करंट क्या है, ज़रा देखना. इन केस ऑफ हैनेल लूप this is the descending limbs where the filtrate is moved in this direction, means that towards the Henle loop, and in this ascending arm the filtrate move in opposite direction to the descending limbs. This is called counter current. Clear. Now move in case of the vasa recta. Same in case of the vasa recta, the blood flow in descending limbs here in this direction, and the blood flow in the ascending limbs in opposite direction, means that both vasa recta as well as Henle loop both shows the counter current mechanism. Okay, now this counter current mechanism helps the maintenance of osmolarity, or you can say maintenance of concentration gradient in इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इस काउंटर करंट के कारण ही जो इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस मैंने अभी आपको कहा था पहले डायग्राम में समझिएगा, उसमें आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करने में मदद करता है. क्या है, यही काउंटर करंट. काउंटर करंट का मतलब क्या हुआ, फिर से समझिए. ये जो लूप ऑफ हैनेल था इसमें एक लिम्ब में इस डायरेक्शन में फिल्ट्रेट आ रहा है,
then opposite direction filtrate आ रहा है. When the filtrate, or you can say when the substance move in a opposite direction, this is known as the counter current. Same here is the counter current in case of vasa recta. आपने देखा ये डिसेंडिंग लिम्स हो गया वासा रिक्टा का, ये असेंडिंग लिम्स हो गया वासा रिक्टा का. अब ये कहलाया क्या जब अपोजिट फ्लो हो रहा है? अपोजिट फ्लो ब्लड का और फिल्ट्रेट का हो रहा है. फिल्ट्रेट का नेफ्रॉन में हो रहा है बच्चों, और ब्लड का वासा रिक्टा में हो रहा है. तो अपोजिट फ्लो से क्या बना? काउंटर करंट बना. और काउंटर करंट का क्या फ़ायदा है? काउंटर करंट का फ़ायदा है टू डेवलप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन medullary interstitial fluid. In medullary interstitial fluid, this is the space between these two, is the medullary interstitial fluid. This is the medullary interstitial fluid. medullary वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप मेडुला वर्ड देख रहे हैं. ठीक है, अब आइए इस जगह को समझिए, डायग्राम को, इसको देखिए पहले ध्यान से. नाउ the osmolarity is increases from cortex to outer cortex, means that in the cortex region is the 300 milliosmol per liter. Milliosmol per liter is the unit of osmolarity. First question of the NEET. Now it is increases from center to the inner medulla. 300 milliosmol per liter, 600 milliosmol per liter, 900 milliosmol per liter, and in very deepest part of the medulla it reaches about 1200 milliosmol per liter. Okay, this is the osmolarity pattern in case of medullary interstitial fluid. क्लियर हुआ? मेडुला पार्ट में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें जो ऑस्मोलरिटी जो है जिसकी यूनिट क्या है? मिली ऑस्मोल पर लीटर, वो इंक्रीज होती जा रही है. कहाँ से? आउटर मेडुला से इनर मेडुला में. ठीक है, ये भी बात पता लग गया. वासा रिक्टा और लूप ऑफ हैनेल दोनों ही इनर मेडुला में है. एक बात क्लियर हो गई पिछले लेक्चर से कि ये डायग्राम जिस नेफ्रॉन का भी है वो नेफ्रॉन क्या है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है. कौन सा नेफ्रॉन है बच्चों? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. क्योंकि जस्टा ही मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रिक्टा इज वेल डेवलप्ड, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट. means that Henle loop is only dipped in the medulla, but here is the Henle loop is deeply dipped in the medulla. देखिए ना, inner medulla तक आ गया. Vasa recta is well developed, means that this is the diagram of juxtamedullary nephron. क्लियर? अब चलते हैं आगे इसकी मैकेनिज्म पे. काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ गए. अपोजिट में फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है हैनेल लूप की आर्म्स में, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है अपोजिट में, काउंटर करंट बना. काउंटर करंट से इंटरस्टिशियल जो स्पेस है उसमें इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना. अब जो इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, यहाँ पे नीट क्वेश्चन पूछता है कि ये इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो अपोजिट फ्लो हो रहा है दोनों में, इसमें ब्लड उसमें फिल्ट्रेट, तो उस काउंटर करंट मैकेनिज्म उस इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? सवाल क्या है? रेस्पॉन्सिबल क्या है? तो रेस्पॉन्सिबल होता है NaCl एंड यूरिया. दिस इज द नीड. Now, which substance is responsible for the concentration gradient in the medullary interstitial space, or you can say medullary interstitial fluid, जो मैंने आपको दिखाया बीच बीच में भरा हुआ. इनके लिए कौन सा जरूरी, कौन कौन सा सब्सटेंस है? आंसर इज NaCl एंड यूरिया. क्लियर हुआ? अब सबसे पहले NaCl की बात करते हैं. क्लियर? नाउ वी नो डैट कि द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द हैनेल लूप इज इम्परमेबल टू साल्ट. तो इसके लिए कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज इट इज़ ओनली परमेबल फॉर वाटर. आते हैं सीधे असेंडिंग लिम्स पर. नाउ दिस असेंडिंग लिम्स इज परमेबल फॉर साल्ट, मीन्स दैट NaCl is transported by the ascending limbs एंड देन एक्सचेंज. अब वो एक्सचेंज कर रहा है, किससे एक्सचेंज कर रहा है NaCl? विद द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रिक्टा. क्लियर बात हुई? मैंने क्या बोला? आप जानते हैं कि जो असेंडिंग लिम्स है इज परमेबल फॉर सॉल्ट, तो साल्ट यहीं से निकलेंगे असेंडिंग लिम्स के.
तो ये जो एक्सचेंज किसके साथ होंगे, जो असेंडिंग लिम्स से NaCl निकल रहा है ये एक्सचेंज किसके साथ होगा, ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आंसर इज डिसेंडिंग लिम्स, द आंसर इज डिसेंडिंग लिम्स। किसका डिसेंडिंग लिम्स, वास रिक्टा का, वासा रिक्टा का डिसेंडिंग लिम्स से NaCl एक्सचेंज होगा। तो फिर ये NaCl वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे आएगा, ये NaCl वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रिक्टा से। आपने सुना मैंने क्या कहा, मैंने नीट का क्वेश्चन बोला, मैंने कहा जब आप जानते हैं कि असेंडिंग लिम्स इज परमेबल फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे, बाहर आएंगे, बाहर आकर जाएंगे किस में, डिसेंडिंग लिम्स इज द आंसर ऑफ द वासा रिक्टा। फिर दोबारा मेडलरी में कैसे वापस आएंगे, क्योंकि मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन सा दो सब्सटेंस मेंटेन कर रहे हैं, NaCl और दूसरा यूरिया। यूरिया तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आएगा, क्लियर हो गया। ये असेंडिंग लिम्स से NaCl आ रहा है, तो ये NaCl आया और किससे एक्सचेंज हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रिक्टा से। देन अगेन कम्स आउट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम असेंडिंग लिम्स। अब देखिए ना, इधर देखिए, यहाँ पर साल्ट बाहर निकला, मीन्स दैट यहाँ पे डाइल्यूशन यूरिन का शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहले जब आप हैनेल लूप से आ रहे थे, यू शेप्ड लूप से आ रहे थे, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर था ऑस्मोलिटी, फिर 900 हुई, फिर 600 हुई, फिर 400 हुई, फिर 300 हुई कम होती जा रही ना साल्ट की, क्योंकि साल्ट यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और एक्सचेंज होकर जा किस में रहा है, डिसेंडिंग लिम्स में। तो अब यहाँ बढ़ेगी, तो देखिए 400 हुई, 600 हुई, 800 क्यों हो रही, क्योंकि NaCl इसके अंदर एक्सचेंज होके आ रहा है असेंडिंग लिम्स से। असेंडिंग लिम्स से NaCl निकल के डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रिक्टा में आ रहा है, तो इसीलिए ऑस्मोलिटी बढ़ती जा रही, क्लियर हो रहा है। 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 800 मिली ऑस्मोल, 1000, 1200। अब फिर असेंडिंग लिम्स से वासा रिक्टा के असेंडिंग लिम्स से दोबारा से NaCl इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। तो जब दोबारा से NaCl इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा तो फिर ऑस्मोलिटी तो कम हो जाएगी, जी हाँ वही हो गई 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400, देन अगेन मेंटेन एज मेंटेन इन द PCT and DCT, means that 300 milli osmol per liter osmolality in the Cortex region, or you can say PCT and DCT। क्लियर बात हो गई, क्लियर हुआ, इतना पार्ट अगर क्लियर हुआ तो आगे देखिए आप इसको और समझदारी से। अगर आप थोड़ा सा एक काम करें, ये जो वासा रिक्टा है इसको मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, सपोज दैट ये जो एयरफोन वाला जो पार्ट है इसको मैं वासा रिक्टा की आपको समझाने के लिए आसान, इसको मैं डिसेंडिंग लिम्ब बनाता हूँ, क्लियर। ये मैंने डिसेंडिंग लिम्ब बना दी, जिसमें ये लगे हुए हैं आपके एयरफोन कनेक्शन है, तो पूरा वायर, इस वायर में जो एयर के प्लग है उसको मैं बना दे रहा हूँ डिसेंडिंग लिम्स समझाने के लिए आपको। और जो रेस्ट पार्ट है ये वाला, इसको मैं वासा रिक्टा की आपको बता दे रहा हूँ असेंडिंग, क्लियर हुआ। अब आप अपने ब्रेन में जो ये डायग्राम ऐसे अलग अलग NCERT बुक में बना हुआ है, अब आप इसको उठाइए डायग्राम को, ये ऐसे ही तो डायग्राम हुआ अब आपके हिसाब से, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द वास रिक्टा, असेंडिंग लिम्स ऑफ द वास रिक्टा, जहाँ पे आप मोबाइल में प्लग करते हैं ये असेंडिंग है, जहाँ पे आप ईयर में प्लग करते हैं वो डिसेंडिंग है। तो ऐसे ही तो डायग्राम हुआ आपका, इसको मैंने उठाया और यहाँ रख दिया बीच में। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, ये वाला तो डिसेंडिंग लिम्ब वासा रिक्टा का था, तो अब आप बताइए कि इसमें आपको क्या समझ में आया कि जो असेंडिंग लिम्स था हैनेल लूप का, उससे जो NaCl निकला वो किससे एक्सचेंज हुआ, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रिक्टा से। अगर आप ऐसे रख कर देख लें, हुआ, बोलिए। और अगेन ये फिर NaCl वापस किससे आया, NaCl वापस किससे आया, असेंडिंग लिम्स ऑफ वासा रिक्टा से। कहाँ, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और उसने क्या मेंटेन कर दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए,
वो मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है, ताकि वाटर जो है कलेक्टिंग ट्यूब में फ्रीली मूव करता जाए और उससे बाहर निकलता रहे, ऑस्मोसिस से इंटरस्टिशियल बॉडी फ्लूइड्स में आता रहे, ताकि यूरिन नीचे जैसे जैसे कलेक्टिंग ट्यूब्स में बढ़े वैसे वैसे डाइल्यूट होती चली जाए, ताकि वो वाली बात सही हो जाए कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन 4 टाइम कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन। इनिशियल फिल्ट्रेट तो ऊपर वाले की बात कर रहा है, जो वोमेन कैप्सूल से फिल्ट्रेट आ रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा 4 टाइम मोर कंसनट्रेटेड हो रहा है, और मैकेनिज्म काउंटर करंट काम कर रही है। और जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर कौन मेंटेन कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, NaCl एंड यूरिया। तो NaCl आपने समझ लिया, क्योंकि आप जानते हैं साल्ट के लिए असेंडिंग लिम्स इज़ द परमिएबल। तो असेंडिंग लिम्स जो हैनेल लूप का था उससे NaCl निकल के एक्सचेंज किससे हुआ, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ वास रिक्टा से। देन अगेन बैक टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय असेंडिंग लिम्स। तभी देखिए यहाँ पर ऑस्मोलरिटी कम होती चली जा रही, फिर आ गई यहाँ पे ऊपर आइसो, सेम हो गई। आइसो क्यों हो गई, क्योंकि PCT में आपने देखा था कि PCT के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन था उसमें साफ साफ NCERT लिख रही है कि 70% ऑफ साल्ट एंड 70% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड साल्ट आर रीअब्जॉर्ब। तो दोनों ही 70 हो रहे हैं, तो आइसो कंडीशन मेंटेन रहेगी। क्लियर बात हो गई। वो लिख रहा है 70% इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वाटर इज रीअब्जॉर्ब। तो 70% अगर साल्ट हो रहा है तो फिर वाटर भी हो रहा है, इसीलिए 300 सीधे प्लाज्मा की तरह मेंटेन रहता है। क्लियर हो गई। ऑस्मोलरिटी यूनिट क्या है, मिली ऑस्मोल पर लीटर है, मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ठीक है, आगे चलिए ना। दूसरा जो कंपोनेंट, दूसरा सल्यूट जो है, जो इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहा है मेडुला में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, वो दूसरा सल्यूट है यूरिया। क्या है, यूरिया। अब देखते हैं यूरिया के बारे में। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज कम्स आउट बाय डिफ्यूजन। अब यहाँ पे डिफ्यूजन वर्ड मिल गया, मतलब नीट का क्वेश्चन एक तैयार हो गया। कहाँ से आया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिया आया, एक नीट का क्वेश्चन तैयार हो गया। कितना आया, वेरी स्मॉल अमाउंट आया। कैसे आया, डिफ्यूजन प्रोसेस से आया। कहाँ आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया। कहाँ जाएगा, आपको सामने दिख रहा है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्स ऑफ हैनेल लूप में आएगा। ओके, नाउ अगेन वापस हो जाएगा। तो जो थोड़ा अमाउंट यूरिया का बाहर आया है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, तो रिमेनिंग यूरिया क्या हुई, रिमेनिंग यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन। जो कलेक्टिंग ट्यूब में स्मॉल पोर्शन ऑफ द यूरिया इज डिफ्यूज आउट इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी टू मेंटेन व्हाट, to maintain the osmolarity, for the maintenance of osmolarity of the medullary interstitial fluid। और आ किसमें गया फिर, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्स ऑफ हैनेल लूप, हैनेल लूप के थिन सेगमेंट में आ गया। क्लियर हुआ, लेकिन स्मॉल अमाउंट बाय डिफ्यूजन इज द नीड, बाय डिफ्यूजन इज द नीड। क्लियर। देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन। आपकी जानकारी के लिए नीट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दूं कि इन केस ऑफ द यूरिया द 25 to 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। फिर सुनिए मेरी बात, 25 to 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे is the most important question of the NEET. Now, name 2 structures which are responsible for the concentration of filtrate. The answer is vasa recta and Hanel loop. These two play a significant role in mechanism of concentration of filtrate. Second need. Now third need.
What is the unit of osmolarity? The unit of osmolarity is the milliosmol per liter. This is the third need. Now, which mechanism is responsible for concentration gradient which is developed in the medullary interstitial fluid? The answer is counter current mechanism. Answer is counter current mechanism. In case of Hanel loop, there is filtrate is move in opposite direction. In case of Vasoricta, the blood is flow in opposite direction and develop the counter current mechanism. Number 4th NEET का question. Now, name the substances या name the solute which are maintaining the medullary interstitial concentration gradient. The answer is NaCl and urea. Answer is NaCl and urea. Now, the 6th NEET question which is based on this topic. Now, from where the NaCl is comes out means that in case of ascending arm of Hanel loop, the NaCl is exchanged. Which arm? किस arm से? Another NEET question. With the descending arm of Vasoricta. देखिए आ गया NaCl अंदर. अब देखिए ऑस्मोलिटी बढ़ने लगी, साल्ट अंदर आया, बढ़ने लगी. 400, 600, 800, 1000, 1200. क्लियर हुआ? यहाँ से कम हुआ, यहाँ कम होने लगा. 600, 400, 300, तभी तो डाइल्यूशन होने लगा. क्लियर हुआ? ठीक इसी तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज डिफ्यूज आउट फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब एंड release in the interstitial medullary fluid, and this help in maintaining the osmolarity, and the rest part of the urea is excreted out. And in a day कितना अमाउंट मैंने अभी बताया था? 25 ग्राम टू 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? नाउ अब क्या हुआ? Now this small amount of urea is comes out, or you can say diffuse out from the collecting tube. It develop the osmolarity in the medullary interstitial fluid. Now इसका advantage क्या हुआ कि water is freely moved in the collecting tubule. Water is freely moved down in the collecting tubules and comes out by and conserve by कह लीजिए या comes out by osmosis. क्या मैंने वर्ड यूज़ कर दिया? osmosis. क्योंकि यहाँ पे आप इतनी देर से ऑस्मोलरिटी की तो बात कर रहे हैं, तो वाटर ये बाहर कहाँ आ गया? बॉडी में कंजर्व होने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया, और जब वाटर कलेक्टिंग ट्यूब से निकलने लगा, एडीएस हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए. ठीक है, जब ये बाहर निकलने लगा, ये बाहर डिफ्यूज ऑस्मोसिस के कारण बाहर आने लगा. नाउ द यूरिन in the lower portion of the collecting tubules concentrated and 4 times concentrated, nearly 4 times concentrated than the initial filtrate concentration. This is known as counter current mechanism which help in maintaining the concentrated filtrate of the urine. Clear बात हुई? Means that this is the counter current mechanism is responsible for the maintenance of concentration of the filtrate. So mammalian kidney or you can say human kidney can produce the urine which is 4 times more concentrated than the initial filtrate concentration. This is the most important NEET question. And about urea, 25 gram to 30 gram is excreted out per day is the important question for the NEET. And here in this counter current mechanism, NaCl and urea, these are the two important to maintain the concentration gradient in the medullary interstitial fluid, or you can say medullary interstitial space. And the third one thing is that from the loop Hanel, from the ascending limbs of
Henle loop, the NaCl is exchanged with the descending limb of vasa ricta, and this NaCl again comes out into the interstitial part of the medulla from the ascending limbs। तो आप देख रहे हैं जब NaCl बाहर निकलेगा तो यहाँ पर देखिए ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम होने लगेगी, 600, 400, 300। इसी मैकेनिज्म पर एक NCERT ने क्वेश्चन दिया, आपको सारी बातें मैंने बार बार बता दी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। उसने पूछा कि जो बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी कंडीशन क्या है, मीन्स दैट हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक। तो माय डियर स्टूडेंट ज़रा सुनते रहिएगा इसमें। इन केस ऑफ बोमेन कैप्सूल आइसोटोनिक, in case of PCT proximal convoluted tubule which is present in the cortex part of the kidney is isotonic, क्योंकि 70% electrolyte as well as water is both are reabsorbed here, so mean that iso is maintaining the this is coming from there ना, यहाँ से आ रहा है ना तो वो isotonic ही रहेगा। now यहाँ आते हैं, दिस इज ओनली परमेबल फॉर वाटर। हैनेल लूप का डिसेंडिंग लिम्स क्या है, परमेबल फॉर वाटर। तो जब वाटर बाहर जा रहा है तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो फिल्ट्रेट क्या होगा, अब वो कहलाएगा हाइपरटोनिक। क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। ऊपर से बोमेन कैप्सूल में क्या था, आइसोटोनिक। नीट का ही क्वेश्चन है, अलग अलग स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के देकर उसने पूछ लिया कि इसका कंसंट्रेशन कैसा है, हाइपोटोनिक इन नेचर है कि हाइपरटोनिक इन नेचर है। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ आइसोटोनिक बोमेन कैप्सूल, आइसोटोनिक पीसीटी आ सकता है, इसलिए आइसोटोनिक पीसीटी, हाइपरटोनिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनेल लूप। नाउ थिन सेगमेंट ऑफ हैनेल लूप, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग हैनेल लूप, हाइपरटोनिक, क्योंकि हाइपरटोनिक ये भी आ रहा है, क्लियर बात हुई। देन टुवर्ड्स द डीसीटी इज हाइपोटोनिक, देन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नीचे आएगा, देन अगेन बिकम हाइपरटोनिक, क्योंकि हाइपरटोनिक ही तो कंसनट्रेटेड यूरिन 4 टाइम मोर देन द इनिशियल, अभी इतनी देर से मैं पढ़ा रहा था, क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से भी हम लोगों को तैयार रहना है इस टॉपिक पर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी देख ली कि हैनेल लूप और वासा रिक्टा ही दोनों सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं इस काउंटर करंट मैकेनिज्म, इन्हीं दोनों के लिम्स में पाई जाती है। आप देख रहे हैं जो नीचे ले जा रहा है उसको मैंने डिसेंडिंग, जो ऊपर ले जा रहा है उसको असेंडिंग। आप देख रहे हैं ऑस्मोलैरिटी जिसमें NaCl अंदर जाता जा रहा है उसमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, 400, 600, 800, 900, जिससे NaCl बाहर आ रहा है उसमें ऑस्मोलैरिटी घटती जा रही। सेम हेयर, यहाँ वाटर बाहर आ रहा है तो ऑस्मोलैरिटी यानी साल्ट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्स है ना, परमेबल फॉर ओनली वाटर मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो देखिए ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है 400, 600, 800, लेकिन असेंडिंग लिम्स में क्या होगा, निकलेगा NaCl तो ऑस्मोलैरिटी घटती चली जाएगी, देन अगेन इक्वल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन दैट इज 300। क्लियर हुआ कि नहीं। तो जो यूरिया कहाँ से निकल रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल रहा है। स्मॉल पोर्शन है, कैसे निकल रहा है, डिफ्यूज़न से निकल रहा है, जिसके कारण वाटर कैसा हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है, मूव डाउन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से बाहर कैसे आ रहा है, ऑस्मोसिस से, जिसके कारण यूरिन कैसी होती जा रही है, हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेटेड। वही NCERT की लास्ट लाइन इस टॉपिक की कि किडनी, इसीलिए NCERT लिखा है कि किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन 4 times more concentrated than the initial filtrate concentration। जहाँ से बोमेन कैप्सूल से चला था उससे 4 गुना 4 times ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगी। और किस मैकेनिज्म से, काउंटर करंट मैकेनिज्म से। जिसमें रोल क्यों हो रहा है ऐसा, इस इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हो रहा है, जिसे मेंटेन करने के लिए कौन से 2 साल्ट हैं, कौन सी 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 इज़ NaCl, नंबर 2 इज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। स्मॉल क्यों कहा, क्योंकि रेस्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट। और एक दिन में कितनी यूरिया, 25 ग्राम टू 30 ग्राम। Thank you students. This is all about the mechanism of concentration of the filtration by filtrate by means of this counter current mechanism which take place in 2 essential part. Number 1 is the vasa recta and number 2 is the Henle loop. These two play a significant role in this counter current mechanism, and there are 2 components, NaCl and urea. NaCl from the ascending limbs
of the Henle loop and urea from the collecting tubules. Okay, thank you very much. You have already listened so many questions of NCERT, so many questions of the NEET, which play an important role. We have already discussed about the isotonic, hypertonic. Again, in the thin segment of the ascending limbs is the hypertonic. Then again in here is the hypertonic in nature. And no doubt, if अगर DCT में जा रहे हैं तो DCT में तो आप ही देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे जाएगी फिल्ट्रेट ऊपर, साल्ट बाहर होगा तो डाइल्यूट तो होते ही जाएगा. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.